एंड वेलकम टू श्री राम साईएस। आप सबका स्वागत है इंडियन इकोनॉमी के इस लेक्चर सीरीज में वेयर वी डिस्कस द बुक ऑफ श्री राम सर हिमसेल्फ। नाउ इन दिस बुक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3. We have also discussed why growth and development are important. Today we will all discuss and continue our discussion in the earlier in the last lecture we discussed about Human Development Index. Today we will continue with the Inequality Adjusted Human Development Index. But as we know that we usually begin the lecture with a case study or a story, or I would say the anecdotes from economic history of the world, or the anecdotes from the I would say economy की कहानियाँ, ठीक है। In 1923 Germany, there was a famous novelist. Her name was Maria Remarque. Now she, in her novel named The Black Obelisk, she discusses about three characters जो कि एक रूम में बैठे हुए थे, ठीक है। ये तीन लोग का नैरेटिव सेट है और ये जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे से पूछ रहे हैं. इन दिस देयर वर थ्री पीपल, वन वाज लडविग, अनदर वाज हिज फ्रेंड जॉर्ज. लडविग आस्क्स जॉर्ज कि जॉर्ज तुम्हें क्या लगता है, आर वी एक्चुअली डूइंग रियली वेल और आर वी इन क्लोवर्स? क्या हम सच में अच्छा कर रहे हैं जर्मनी में? क्या हमारे सच में अच्छे दिन आ चुके हैं जर्मनी में, या फिर हम अभी भी उस हालत में हैं जहाँ पे हमारा तबाह होना तय है, या फिर अभी भी हम वही चिल्लर ही गिन रहे हैं जर्मनी में? ये बात उस टाइम पीरियड की है व्हेन जर्मनी वाज विटनेसिंग एन इन्फ्लेशन ऑफ 50% पर मंथ. इन्फ्लेशन रेट ऑफ 50% पर मंथ. हर महीने 50% प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे. लाइक लास्ट मंथ जो गुड 50 रुपए का था वो इस महीने 75 रुपीज का हो गया. नेक्स्ट मंथ इट विल बी ऑफ 75 मीन्स 32.5, दैट इज 107. नेक्स्ट मंथ इट विल बी अराउंड 150, ठीक है, 155 or 54, rough approximate, it would be around 3.5, 154.5, ठीक है, the 153.5. The problem here is that the prices were increasing in such a manner, but अभी भी at this point of time the situation of Germany was very simple. People replaced the currency, that is cash, with cigarettes, and they replaced the wood chips with cash. वो लकड़ी जलाने के बदले रुपया जलाना स्टार्ट किया था उन लोगों ने, डॉलर जलाना शुरू किया था. मतलब लकड़ी जलाने के बजाय पैसे जलाते थे ताकि गर्मी ले सके, क्योंकि चाहे वो कितने भी पैसे दे सके दे देते. अ बैग फुल ऑफ नोट्स was not able to buy them one piece of wood. Similarly, when they tried to exchange or use the medium of exchange cash, ठीक है, कैश को यूज करने की कोशिश की, but still no one was ready to sell any good in cash. So therefore they replaced the cash with cigarettes and they started barter system, and cigarette acted as the medium of exchange. Now the situation in economies, or the situation in front of economists, usually do pose a challenge or usually perplex the economists. अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए और कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जाए? स्टिल इन्फ्लेशन 50% की है, बट अगर आप हंगरी की बात करो, ठीक है, हंगरी in 1946 had an inflation rate of, I can't pronounce this word, it was 419, then 14 zeros. This much percent of inflation rate of Hungary
1946. Now, in such situations, or I would say in Zimbabwe, the situation meant that Zimbabwean dollar used to have, I would say it was a sextillion dollar bill. ठीक है, इतना बड़ा करेंसी नोट था which had 1 and 16 zeros. ठीक है. Now that is the situation which economists usually face sometimes have faced in the past economies, and that is why we try to do one thing. We tried to broaden the horizons of economy. We tried to question that is economy only about the rational economic man which was given by Adam Smith, or is there more into economy? The more into economy, the question of having more into economy, having more in the platter of economists was simple, that where are the other horizons of economy, and उसमें हमने एक discussion किया था Kate Raworth का, the embedded economy or the donut economy. Or I would say economy is not just about growth, it's not just about numbers, it's also about development. And in this development, there is a famous quote in one of the books named Traditional. The book says that in a room, if there are 3 persons sitting, say for example there is a mathematician, there is a statistician and there is an economist. तीनों से एक सवाल पूछा गया, what is 2 plus 2? The mathematician will answer that it is 4. The statistician will say that on an average it is 4, but it can be up to 10. It can be up to 10. But when the question will be asked to an economist, he will get up, close the door, make sure that it is locked, and then come again and sit and ask the interviewer, what do you want it to be? Do you want it to be 4%, 10%, 100%, or 1000%? That is how economy, I would say, as a science, deals with numbers. Now, leaving it aside, we will discuss the Human Development Index. Human Development Index, Human Development Index, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था इससे पहले भी, we discussed that it is based on 3 parameters of health, education and standard of living, in which we usually take care of 3 indicators. One is the life expectancy, another is the years of schooling, whether that is average years of schooling, mean years of schooling, or expected years of schooling, or the third one is the gross national income based on purchasing power parity. But as I discussed yesterday in the past lecture, I don't think that we discussed it. I gave you, or no, I didn't give the example, I'll give the example right now. That is, say there are 2 people, one is A, another is B. A की salary is 10,000 rupees per month and B की salary is 15,000 rupees per month. Very simple. Now you will say that A और B के बीच में there is a wide inequality. B is more rich than A. But then again I will tell you that A has to work only for 2 hours a day and B has to work 12 hours a day. Now tell me who is more rich? Again, if I tell you that A is more qualified, he has got 8 skills, a skill set with 8 skills. Say for example he knows AI, he also knows how to operate computers, he also knows how to use, say, different database management, he also knows how to liaison or how to do multiple things. Once this condition happens, and we get to know that A has got multiple things at hand and A is actually more rich than B. Similarly, B is unskilled, or I would say B has got no skills at all and he is doing a manual labor. Now tell me, when we say growth, maybe B has more growth than A. But when we say development, A has got more in hand than B. That is how the definitions of growth and development
are different. But tell me one thing. In terms of growth, we can say the inequality is of 5,000 rupees per month, in terms of growth. But when we talk about development, we will take care of all of these. So therefore, in development also there is inequality. So when we measure the inequality in terms of development, or when we measure the inequalities in development, then we can conclude or calculate the index named as inequality adjusted human development index. सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ये. नाउ इसमें हम करते क्या हैं, वी सिंपली डू समथिंग, दैट इज वी डिस्काउंट और डू द डिस्काउंटिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी नंबर्स, कि अफ्रीका में लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है और इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है. हमने देख लिया दैट ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक वाज 130 ऑन 2025. वहीं पे अगर हम देखें इंडिया के अंदर एवरीवन इज नॉट डेवलप्ड एट द सेम लेवल. हाँ, इंडिया में कुछ पॉपुलेशन इज डेवलप्ड एट मच हायर लेवल एंड सम पॉपुलेशन इज डेवलप्ड एट मच लोअर लेवल. इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो हमने अभी इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझा था वो इसीलिए बताया था मैंने स्टोरी इसीलिए बताई थी जर्मनी की, दैट द पीपल हु आर मोर डेवलप्ड, हु हैव मोर साउंडनेस इनटू देमसेल्व्स, नॉट जस्ट लेबर, बिकॉज जब कल को बी के सामने वो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, उसके वो 15,000 किसी काम के नहीं होंगे. बट अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे जो वो प्रेशर आएगा वो शायद भी नहीं झेल पाएगा, ए झेल लेगा. क्यों? बिकॉज ही हैज गॉट मोर रेजिलियंस, ही हैज गॉट मोर स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ही हैज सेट हिमसेल्फ रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस, ही हैज गॉट मच टाइम फॉर लेजर, he has got much time to make sure that his life goes to self-actualization rather than being limited to what basic needs. Do you understand? Chalo, that is a discussion which we will be having in the next slide, that is happiness index. So therefore, inequality adjusted human development index, when there is no inequality, then IHDI will be equal to HDI. But when there is rising inequality, IHDI will be less than HDI. ठीक है. So therefore, inequality adjusted human development index के हिसाब से अगर देखें तो GDP per capita and inequality adjusted human development index per capita, the countries have shown different figures. 2021 के प्राइसेस के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया had 9046 GNI पर कैपिटा. ठीक है, याद है 2025 में अभी हमने देखा था रिसेंटली, 2025 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से HDR 2025. ठीक है, अंडरस्टूड. सो देयरफॉर व्हेन वी एडजस्ट इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स with respect to inequality or with respect to good education, healthy life and decent standard of living, when it is adjusted to it, the rank of India decreases. ठीक है, simple. Remember these numbers. इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखनी है, very simple. हमने capital discuss किया था, that capital is very much important for an economy to grow. Capital as in say machines, tools, buildings, hospitals, education के लिए schools, बहुत सारी चीज़ें, है ना. So when we create capital, where do we source the capital from? Say for example raw material कहाँ से लेके आते हैं? It is usually the natural capital of a country. जैसे हमारे यहाँ से resources निकलते हैं, याद है वो बॉटल में कैश डाल के I would say डंप करने का आइडिया जो मैंने बोला था, वैसे ही अगर हमारे यहाँ पे हम देखें तो say for example दो regions, one is the Bihar, UP, Jharkhand and Odisha वाला region and another is the Punjab, Haryana और Western UP वाला region. ठीक है, just take the two regions and understand the geography and understand the inequality and regional disparity between the two. Simply मैं बताऊंगा यहाँ पे, in this region we found that there were natural minerals जैसे iron ore, aluminium, बहुत सारे और minerals है, phosphorus है, mica है, बहुत सारे resources है वहाँ पे. And now in this sector, in this region of our country, the industries have started developing. Industries के around slum towns बनना start हो गया और वो industrial township बनना start हो गया और वहाँ पे industrial development हुआ.
ठीक है, एंड ऑल द इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय लेबर एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दैट देयर इज अ मोर इनइक्वालिटी। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है दे आर हायर एंड द लेबर क्लास इज स्टिल ऑन दैट, एंड यू विल सी दैट यहां से इस रीजन से बहुत सारा माइग्रेंट लेबर पूरी कंट्री में जाता है। Why? Because they do not have that resilience. Do you understand? However, if you talk about this region, which is Punjab, UP, Western UP, Haryana, this region has got enough resources in terms of agriculture. यहाँ पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और हर एक इंसान के घर पे कम से कम एटलीस्ट उनके घर पे खाना तो मैसर है। They all have got food, they all have got multiple things, they have their resilience. Now you will see that even the smallest farmer also has at least food security. ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे दैट बिहार से या इस ईस्टर्न रीजन से लेबर, माइग्रेंट लेबर जाके इस रीजन में काम करता है ड्यूरिंग दैट सीजनैलिटी। ठीक है, सो दैट इज हाउ द इनइक्वालिटी हैपन्स, दैट इज हाउ द रीजन्स और रीजनल डिस्पैरिटीज कॉज इनइक्वालिटी। और ये इनइक्वालिटी हमारे देश में है। Why? Because the existence of capital is different. There is land as a capital, there is minerals as a capital, natural capital. इसी तरह से दुनिया के बहुत सारे नेशंस जिनके पास नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और मैन मेड कैपिटल ज्यादा है, तो वो डेवलपमेंट के मामले में भी आगे रहेंगे। वैसे ही कुछ नेशंस जिनके पास कैपिटल नहीं है, चाहे वो नेचुरल कैपिटल है, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल है, चाहे वो मैन मेड कैपिटल है, वो डेवलपमेंट के मामले में भी पीछे रहेंगे। दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी कैलकुलेट द वेल्थ एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाँ, we can now calculate wealth adjusted human development index because the wealth is what? Wealth is capital, natural, produced and human capital, तीनों। This is the natural wealth, and wherever it is more in these nations, the development will be more. Wherever it is less, the development will be less. Do you understand this? ठीक है, this is the second concept. The third concept which I am introducing over here is the planetary pressures adjusted human development index. ठीक है, very simple. Say for example, I am developing my humans. ठीक है, we are developing or we are going for human development index or we are going for human development. Say human development education से होता है, human development बहुत सारी चीज़ों से होता है। Now I will give you an example, very simple. Say for example, हमने बोला that we need to provide electricity for our township and industrial town, ताकि इस इंडस्ट्रियल टाउन में जो कि लोकेटेड है से बलिया बिहार में, ठीक है, दिस इंडस्ट्रियल टाउन, ताकि इस इंडस्ट्रियल टाउन में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट हो, इंडस्ट्रीज लगे, एम्प्लॉयमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हो। से फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोगों की अच्छी हो जाए, वहाँ पे हॉस्पिटल हो, जब वो पैसा कमाएंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और जो ही उनकी हेल्थ हो जाएगी, एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, तो हो सकता है उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाए। ठीक है, उनका कुकिंग फ्यूल भी अच्छा हो जाएगा because now they will be using electricity. उनका से फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो उनका मोबिलिटी, that is vehicles which they will be using will be now electric vehicles. ओवरऑल चीज़ें जो इससे लास्ट का ऑब्जेक्टिव है, that is we will be able to decrease the green house gases. और यहां से क्या होगा, एमिशन ऑफ CO2 will decrease. When the emission of CO2 will decrease, say CO2 emissions डिक्रीज होंगे, तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और आई वुड से इंडिया वुड बी एबल टू अचीव इट्स क्लाइमेट गोल्स और नेशनली
determined contributions, NDCs जो हमारे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। सिंपल, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है हमारा। नाउ द बेसिक फंडा इज इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। हाँ, कहां से प्रोड्यूस करेंगे, वी हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। ईदर वी कैन प्रोड्यूस इट फ्रॉम थर्मल पावर, और आई वुड से कोल बेस्ड, और वी कैन मेक एन, और वी कैन कंस्ट्रक्ट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, HEP बना सकते हैं। दो चीजें है ना। So that is how we develop the population, that is how we develop our region, that is how we develop our country, because यहाँ से employment generate होगी, say for example यहाँ से employment generate होगी 1 crore rupees की per month, per year। यहाँ से जो total net benefits होंगे, CO2 emission कम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें, it is worth कि इस एक प्रोजेक्ट का, इस एक पूरा जो हम कर रहे हैं, इसका जो नेट इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पे, नेट पॉजिटिव इफेक्ट विल बी से फॉर एग्जांपल 10 करोड़, और से 10, इसका जो पॉजिटिव नेट पॉजिटिव इफेक्ट आएगा से इट इज 100 CR। हमने कैपिटल भी बनाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, हमने बहुत सारी चीजें बनाई, बट टेल मी वन थिंग, हाँ वेरी सिंपल, टेल मी वन थिंग, हाउ मच प्रेशर इज इट क्रिएटिंग ऑन द एनवायरमेंट। समझो इस चीज को, अगर हमने ये कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द कंडीशन, कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीजें नहीं होंगी, उल्टा CO2 एमिशन बढ़ेगा, ठीक है, उल्टा CO2 एमिशन बढ़ेगा, कहां से, यहां से कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से। प्लस वी ऑल्सो नो दैट जहां हम चाहते हैं कि लोग अच्छा फ्यूल यूज करें, कुकिंग फ्यूल चेंज करें, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे आ जाएं, लोग सारे के सारे 100% people will not follow it, they will still have traditional part into it and some people will follow it. So first pollution is here, second pollution will be here also, ठीक है, 100% तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। फर्दर एक और चीज याद रखनी है कि इसकी वजह से नाउ दिस रीजन है ना जो हम बना रहे हैं, इस रीजन को जो हम डेवलप कर रहे हैं, which otherwise was ecologically, it was ecologically pristine, से यहां पे ऑलरेडी जंगल था, वेल एस्टैब्लिश्ड जंगल था, बट हमें पता चला नीचे रिसोर्सेज हैं, हमें पता चला नीचे ऑयल है, कोल है, उस कोल को एक्सट्रैक्ट करना है, या हमने जब ये टाउनशिप बनाई, ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई, हमने जंगल साफ किया वहां पे, दैट इज ऑल्सो फुटप्रिंट, से इट इज मटीरियल फुटप्रिंट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड the positive effect of this project is total positive effect, say it is 200 CR, while as the negative effect on environment is 100 CR. इसीलिए मैंने बोला था that net positive effect in the long term, say in 10 years will be 100 CR, ठीक है। Now what is this negative impact? This negative impact is how much pressure we have created on the environment, ठीक है, जो हमारी वजह से environment change हुआ, चाहे वो आज हम कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप लगा रहे हैं या फिर वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होते टाइम ही स्टार्ट हो गया था, वो तब से स्टार्ट हो रहा है जब से ह्यूमंस ने क्लाइमेट में चेंजेस लाना स्टार्ट किया है। जब हमने पहली लकड़ी जलाई थी, पहला आग जलाया था, तब से ही हम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज द एंथ्रोपोसीन एरा। इट इज यूजुअली द प्रपोज्ड जियोलॉजिकल, हाँ, it is the proposed geological epoch which is defined by significant human impact on Earth's geology and ecosystem, which is marked by climate change, pollution and biodiversity loss, ठीक है। Since humans started to change the environment, that is Anthropocene era,
और अब इस डेवलपमेंट की वजह से हमारे प्लैनेट पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्चुअल में पता चलेगा जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें से कुछ हमें माइनस भी करना है, क्योंकि हमारी वजह से हाँ दो चीज़ें पड़ी है एनवायरनमेंट में, दो चीज़ें चेंज हुई है इकोलॉजी में। क्या क्या चेंज हुआ है? वन इज मटीरियल फुटप्रिंट एंड सेकेंड इज CO2 एमिशंस। जो हमने CO2 एमिट किया है और जो हमारी वजह से मटीरियल फुटप्रिंट हुआ है। सिंपल, अंडरस्टूड? हाँ, so that is how the PHDI will be adjusted. So PHDI modifies the Human Development Index by accounting for CO2 emissions. ठीक है, per person and material footprint per capita to measure the excessive planetary pressures. Understood? ये जो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आपने इनको नोट डाउन करके रखना है। Now, India's achievement has been fabulous in terms of PHDI, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ सच कंट्रीज। अदरवाइज अगर आप देखो तो मोर देन 50 कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जब हमने देखा कि वो प्लानेटरी प्रेशर कितना क्रिएट कर रहे हैं तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नेगेटिव में चला जाता है व्हेन इट इज एडजस्टेड टू प्लानेटरी प्रेशर्स। बट इंडिया इज सच अ कंट्री जिसका PHDI इज इवन मोर देन HDI। क्यों? हाँ, PHDI exceeds its HDI because we have been demonstrating positive impacts in terms of climate change. हमने NDCs को पहले ही अचीव कर लिया, उसके साथ साथ हम और भी क्लाइमेट गोल्स में आगे बढ़ रहे हैं और क्लाइमेट गोल्स को अच्छे से अचीव कर रहे हैं। सिंपल। सो देयरफॉर the planetary pressures human development index, planetary pressures adjusted human development index, that is PHDI, is calculated by calculating two things. One is the CO2 emissions, another is the material footprint created on the planet. Third thing is इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद we will adjust this arithmetic mean with human development index. Now the adjustment factor will be planetary pressure, that is arithmetic mean of these two. This will be adjusted with human development index, and product of HDI and A, that is HDI into A, that is arithmetic mean of these two, will be planetary pressures human development index. अगर ये 1 के बराबर होता है तो it means the planetary pressure is very less, which means PHDI is equal to human development index. While as अगर it is more, so it means that human development index is at the cost, net cost of ecosystem. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जनता के पास 1000 रुपये की मंथली इनकम है, हाँ एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके लोगों का पर कैपिटा इनकम इज 1000 रुपीज, कितना? 1000 रुपीज, एंड इट इज only because you are directly cutting the trees or lumbering the trees and selling them in market. ठीक है, एक पॉपुलेशन है, उनका एक ही काम है जंगल काट के बेच देना बस, और कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, वो इसी का 1000 रुपये कमा रहे हैं हर महीना या हर साल, पर कैपिटा इनकम 1000 रुपये है। नाउ टेल मी व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डिस्ट्रॉइंग एंड देन क्रिएटिंग, इवन उनका PHDI विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो रहा है बट एट द नेट कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट ओनली, वो खुद से कुछ नहीं कर रहे। डू यू अंडरस्टैंड? चलो, दिस वी डिस्कस्ड। नाउ द नेक्स्ट वुड बी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, व्हाई इज हैप्पीनेस मोर इंपॉर्टेंट? जो मैंने एग्जाम्पल दिया था A और B का, हाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिया था A और B का, नाउ टेल मी वन थिंग, विच वन डू यू थिंक इज मोर हैप्पी? हु इज मोर हैप्पी? A is more happy और B is more happy? Tell me. बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, देखो A के पास टाइम है सबसे पहले हैप्पी होने के लिए, खुश होने के लिए उसके पास टाइम है। B के पास तो टाइम ही नहीं है ना खुश होने के लिए, वो 12-14 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद वो घर जा रहा है, खाना खाया, वो थक गया और वो सो गया। उसके पास टाइम कहाँ एंजॉय करने के लिए? वो दिन के 7 दिन, महीने के 30 दिन तो काम पे जाता है, 24/7 365 he is on work. Now, how will he find time to be happy? What is happiness? Happiness is the sense of achievement. Happiness is when you enjoy the moment. But वो enjoy कर ही नहीं रहा ना। I'll tell you one more example of industrial revolution. ठीक है, कार्ल मार्क्स, जिसको नाम से सब लोग जानते हैं, कार्ल मार्क्स once usually gave us an example
or usually gives us the analogy that how the industries actually, I would rather say that make your brain dead. ठीक है, कैसे? बहुत सिंपल सी बात. Say for example this remote, ये रिमोट है और ये एक मशीन में बन रहा है, ये एक असेंबली लाइन पे बन रहा है. ये रिमोट में एक आदमी है जो बस इसका बटन फिक्स करता है. ये 4 बटन 5 बटन अपनी अपनी जगह पे लगाने हैं, बस उसका यही एक काम है. वो पूरा दिन यही करता है, उसका पूरा दिन का टारगेट है 1000 रिमोट्स में बटन फिक्स करना. सिंपल. दूसरा बंदा, उसको ये लाइट लगानी है रिमोट के सामने, ये बल्ब लगाना है. ठीक है, उसका यही एक टारगेट है, पूरे दिन में बस वो एक बल्ब लगा रहा है. नाउ टेल मी व्हाट आर दे कंट्रीब्यूटिंग? दे आर कंट्रीब्यूटिंग से फॉर एग्जांपल 0.1% ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, 0.1% ऑफ द प्रोडक्ट. ना पूरा दिन वो बस यही कर रहा है, उसके दिमाग में और कुछ आ भी नहीं रहा. वो एक कॉग इन अ व्हील बन चुका है, वो कुछ भी नहीं कर रहा और उसके दिमाग में आ भी नहीं रहा, क्योंकि उसको टोटली एक रोबोट की तरह काम करना है पूरा दिन. ठीक है. नाउ टेक द प्लाइट ऑफ दिस पर्सन, कि इस इंसान की मिजरी देखो क्या है. सबसे पहले इसको तो यहां से जाने के बाद, मतलब पूरा दिन जब ये काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है अपने बारे में भी. वो बैठा हुआ है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, उसको आइडिया ही नहीं है कि मैं कर भी क्या रहा हूं. ही इज इवन एलिनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ. उसको तो पहले ये भी नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट फाइनल बनेगा क्यों, कैसा बनेगा, दिखेगा कैसा. उसके बाद जो इसको बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, वो इसको बोर्ड के लिए यूज करेंगे या रिमोट को एसी के लिए यूज करेंगे या टीवी के लिए यूज करेंगे, ये किस लिए बन रहा है. उसको तो बस एक ही चीज से मतलब है ना, बटन लगाने से. नाउ ही इज एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑल्सो. देन जब वो इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे दे रहा है, वो घर जाके क्या करता है, बस खाना खा के सो जाता है. नाउ ही इज एलिनेटेड फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो. उसको तो फैमिली को देने के लिए टाइम भी नहीं है. नाउ वंस ही डज दिस, अब वो बस उठ के एक मशीन की तरह सुबह खाना खा के ब्रेकफास्ट करके वहां आ गया, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में आ गया, शाम को वापस चला गया. दैट्स इट, इतना ही काम है उसके पास. नाउ ही इज एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ. अब वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है. उसको यार दोस्त पूछते हैं, भाई तो दिख नहीं रहा है आजकल. वो बोलता है काम बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये एक ऐसी फ्रेज है जो आप सब लोगों ने सुनी है ना. काम बहुत है आजकल, है ना. पहले तो यार बहुत तो घूमता था हमारे साथ, अब तो दिखता नहीं है. भाई काम बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में ही सारा टाइम निकल जाता है ना. जस्ट लिसन टू इट. देन आफ्टर दिस व्हेन इट कम्स टू स्टेट, ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द स्टेट इटसेल्फ. उसको पता ही नहीं है किसकी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, किस पार्टी ने क्या बोला था, किसके मैनिफेस्टो में क्या लिखा था, क्या उन्होंने वो मैनिफेस्टो पूरा किया या नहीं किया, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या उन्होंने पेपर लीक करा के सही किया था या गलत किया था, क्या मतलब एक्चुअल में चल क्या रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता. ठीक है, बिकॉज ही इज टोटली इनटू वन फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज ऑल्सो समथिंग विच अ रोबोट कैन इजीली डू. That is how alienation happens. That is how you lose the happiness. That is how you turn into a machine. ठीक है, this concept usually is known as alienation of self or alienation of man or alienation from the state, whatever it is, just leave it. अगर समझ में आ गया है, now आपको समझ में आ सकता है that why B is not happy and why most of the people in the world currently are not happy despite of having money. ठीक है, because they do not have time to have happiness. सबसे बड़ी दिक्कत ये है. सो इसीलिए भूटान के किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक हमें ये कहानी बताते हैं और ये डेवलप करके देते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ हो. हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो दैट इज वाई वी शुड थिंक अबाउट मोर डायमेंशंस ऑफ हैप्पीनेस. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्चरल वैल्यूज, गुड गवर्नेंस, ट्रस्ट, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए. और तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, क्या वो एक्चुअल में डेवलप्ड हैं या नहीं. एक्चुअल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी एंड नॉट जस्ट अबाउट हैविंग एमिनिटीज इन लाइफ. इट इज अबाउट हैविंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ. नाउ हाउ विल यू हैव हैप्पीनेस? सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. दूसरा, आपको पता होना चाहिए टाइम यूज कहाँ हो रहा है. रीसेंट सर्वे के हिसाब से अगर आप देखें तो मेन आर जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग 9 to 10% ऑफ देयर टाइम इनटू हाउस होल्ड चोर्स. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ करंट फैमिली. आपने शादी करी फैमिली बनाने के लिए, आपकी फैमिली में आप ही नहीं हो. द हाउस इज एम्प्टी. दोनों लोग अलग अलग ऑफिस में रह रहे हैं, अपना
कितना टाइम, से फॉर एग्जाम्पल 12 hours, 50% ऑफ देयर लाइफ टाइम इज स्पेंट इन व्हाट, से ऑफिसेज, एंड देन 20% ऑफ द टाइम, 2 से 4 घंटे जिसमें वो साथ में खाना खाते हैं, दैट इज स्पेंट टुगेदर, और उसके बाद फिर सो जाना है ना, क्योंकि 1/3 ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंट व्हाइल स्लीपिंग। सो नाउ टेल मी हाउ विल यू बी हैप्पी, है ना। टाइम यूज यही है, और टाइम यूज सर्वे अभी रिसेंटली हुई थी, तो पढ़ लेना उसके बारे में। टाइम यूज सर्वे 2025 में आई थी, डू रीड अबाउट इट, मीन्स में बहुत काम आएगी। कम्युनिटी वाइटैलिटी, हाउ मच स्ट्रांग इज योर कम्युनिटी, you live in those I would say cities, those countries, those regions or those urban areas जहाँ पे आपको जानने वाला कोई नहीं है ना, जहाँ पे even you know someone you cannot talk to them, जहाँ पे the relationships are mechanical in nature, जहाँ पे you do not even exist because the next door neighbor doesn't know you, doesn't bother about you, that what you are doing or who you are or where did you come from. So how will you develop that community, है ना। जहाँ पे गांव में अगर एक घर में एक बर्तन शेल्फ से गिर जाता है और आवाज़ 2 घरों में जाती है और 4 घरों में जाती है और सबको सबके बारे में सब कुछ पता होता है, अगर एक घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे लोग आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कम्युनिटी वाइटैलिटी। वहीं पे आपके कमरे में अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो अगले वाले कमरे में आवाज़ नहीं आएगी और वो लोग वहाँ नहीं आएंगे देखने के लिए, दैट इज कम्युनिटी वाइटैलिटी। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इट कि आपने सड़क पे किसी का एक्सीडेंट देखा, हाउ मच स्ट्रांग इज योर कम्युनिटी दैट ऑल द पीपल विल स्टॉप ओवर देयर, द ट्रैफिक विल स्टॉप, दे विल कॉल द एम्बुलेंस एंड दे विल गेट द पर्सन टू द हॉस्पिटल। नो वन विल डू दैट, दैट इज कम्युनिटी वाइटैलिटी। ठीक है। हेल्थ, कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल रेजिलियंस, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। Some important things, cultural diversity, how much culturally diverse you are, how much inclined to your culture you are. अब हमारा ट्रेडिशनल सेटअप, लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल, सी हम लोग जो ये पूरा बेल्ट है, मतलब आप समझो कौन सा बेल्ट, जो ये हिंदू कुश वाला बेल्ट है, जो ये हिंदू कुश वाली सिविलाइजेशनल बेल्ट है, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडिया के लोग हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया, मतलब चाइना तक, ये जो पूरा बेल्ट है जो ये हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में पड़ता है, यहाँ का एक अलग कल्चर था। द कल्चर वॉज वेयरिंग क्लोथ्स विच आर खुले खुले कपड़े। ठीक है, हर एक इंसान अगर आप देखो तो वेस्ट से ही, वेस्ट एशिया से लेके बराबर ईस्ट एशिया तक, है ना, सब रीजन का एक ट्रेडिशन था, दैट इज खुले खुले कपड़े पहनना। बट ये पूरा रीजन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है, हाँ वेस्ट एशिया नहीं आया उतना ज़्यादा, बट ईस्ट एशिया आ गया, है ना, कॉलोनियल इन्फ्लुएंस में आ गया। एंड सी आर ड्रेस कोड, आजकल अगर कोई इंसान धोती पहन के घर से निकलता है ना तो वो 10 बार सोचेगा कि नहीं बाहर नहीं जाता हूँ, वापस ही आ जाता हूँ, है ना। सो दैट इज हाउ इट हैपन्स। द कल्चरल वैल्यूज वी आर लूजिंग देम डे बाई डे, दैट इज वाई कल्चरल रिवाइवलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, कल्चरल हैप्पीनेस। ठीक है, फॉर हैप्पीनेस इट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज हाउ द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसके 9 डोमेन्स हैं जो कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे ही ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बनता है इंडिकेटर। ठीक है, इसको भूटान के किंग ने कॉइन किया था, पहली बार बनाया था, एंड इट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन होलिस्टिक टर्म्स बियॉन्ड जीडीपी। ठीक है, डन। चलो नाउ अंडरस्टैंड, देयर इज वन मोर थिंग विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज एल्कायर-फॉस्टर मेथड। ठीक है, एल्कायर-फॉस्टर मेथड क्या होता है? दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल जिससे हम कैलकुलेट करते हैं इनइक्वालिटीज को। बहुत सिंपल, इट इज अ मेथडोलॉजी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी बियॉन्ड इनकम। ठीक है, इनकम का तो हमें समझ में आता है कि ए की इनकम 10,000 है, बी की इनकम 15,000 है, तो ए इज पुअर देन बी, इनकम इनइक्वालिटी इनके बीच में है। बट कंसिडर हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो मैंने बोला था स्किल्स का, एजुकेशन का, और उसके पास टाइम है, वो लेजर में रह रहा है, वो मस्त रह रहा है, उन चीज़ों को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल सी डेप्रिवेशंस। क्या अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस इंसान के पास साफ पानी मुयसर है और इस इंसान के पास गंदा पानी है, इस इंसान के पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, अच्छे कपड़े हैं, और इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, इस इंसान के पास खाना है और इस इंसान के पास खाना नहीं है, इसका न्यूट्रिशन अच्छा है, इसकी बॉडी अच्छी है, इसका BMI अच्छा है, इसके पास तो माल न्यूट्रिशन है।
डू यू अंडरस्टैंड? अब इन चीज़ों को हम वेट असाइन करते हैं और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं कि किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है। जो चीज़ें नहीं है वही हमें बताती है दैट हाउ मच इनइक्वल दे आर। ठीक है, दैट इज Elkayer-Foster method, that we assign weights to it and then calculate the deprivations. Once we count the deprivations and then we set the poverty line for all of these. And last में हमें एक इंडेक्स नंबर शो होता है और वो इंडेक्स नंबर हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट इनइक्वालिटीज। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात हो गई। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बाद देयर इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच इज डेवलप्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, दिस इज a body under United Nations. United Nations Sustainable Development Solutions Network. It was inspired from the this National Happiness Index of Bhutan itself. वहाँ से इंस्पायर होके हाँ इंटरनेशनल लेवल पे हमने बोला दैट हम इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कर सकते हैं दैट वी कैन गो फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल। इसके लिए वी टुक 6 dimensions: per capita income based on purchasing power parity, health, life expectancy कितनी है, freedom to make life choices, how much free you are to make your life choices, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, किससे शादी करनी है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, how much free you are। क्या आप नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री में रहते हो या चाइना जैसी कंट्री में रहते हो या इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो या यूएस, यूके या फिनलैंड जैसी कंट्री में रहते हो जहां पे आपके पास पूरी आज़ादी है, क्या आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ट्रस्ट एंड सोशल सपोर्ट, वही जो मैंने बोला था कि अगर आप पे कोई दुविधा आती है, अगर आप पे कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम पे आपकी हेल्प करने के लिए कितने लोग आते हैं। जेनरोसिटी, हाँ, हाउ मच जेनरस आर द पीपल अराउंड यू। ठीक है, कि अगर आपको ज़रूरत है पैसे की तो कितने लोग आएंगे और आपको बोलेंगे ले ले भाई पैसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे अगले महीने लौटा देना, 2 महीने के बाद दे देना, 3 महीने। हाउ मच जेनरस आर दोज पीपल, है ना। तो ठीक है, वी ऑल नो अबाउट दैट। ठीक है, परसेप्शन ऑफ करप्शन, हाँ, आपको क्या लगता है कि आपकी इकोनॉमी में करप्शन कितना रोल प्ले करता है। हाउ मच डू यू थिंक दैट विदाउट करप्शन यू वुड नॉट वर्क, और आपका काम नहीं हो पाएगा, है ना। विदाउट करप्शन आप कहीं नहीं जा पाओगे, अगर आप चाहोगे भी काम करवाना किसी से तो वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ करप्शन। हाउ मच डू यू थिंक दैट करप्शन इज नेसेसरी इन योर इकोनॉमी। सो देयरफॉर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो इस साल आई है 2025 में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2025 में आई थी, इसके हिसाब से फिनलैंड कंटिन्यूज टू डोमिनेट द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। फिनलैंड का रैंक 1 है इस साल भी। डेनमार्क हैज स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट, आइसलैंड हैज कम्युनिटी फोकस, कम्युनिटी वाइटैलिटी, स्वीडन हैज पर्सनल फ्रीडम, मोर ऑफ अ पर्सनल फ्रीडम। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये पॉइंट्स मेंस के आंसर्स में काम आएंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, फिनलैंड 8 साल से कंजिक्यूटिवली फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, देन डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। इंडियाज रैंकिंग इज 118 इन 2025 विच फ्रॉम 2024 इम्प्रूव्ड। नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, दीज आर द साउथ एशियन नेबर्स। अफगानिस्तान इज कंजिक्यूटिवली एट द लास्ट ऑफ द रैंक्स, दैट इज 147। 2025 की जो ग्रॉस ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी, इसका थीम था केयरिंग एंड शेयरिंग, एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है मार्च 20 को। ठीक है, सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। इट इज ट्रस्ट, फ्रीडम, जेनरोसिटी, सोशल कनेक्शंस, शेयर्ड मील्स एंड कम्युनल काइंडनेस। ठीक है, तो ये ज़रूरी है ना। अगर आप ऑफिस में एक साथ बैठ के खाना खाते हो, अगर आप स्कूल में, अगर आप कॉलेज में, अगर आप किसी भी जगह पे साथ में बैठ के खाना खाते हो, तो आप देखना वो खाना खाना इट बिकम्स अ वर्शिप, एंड उससे ना बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है। दैट इज़ व्हाट हैप्पीनेस मीन्स। ठीक है, सिंपल। सो दैट वाज ऑल फॉर हैप्पीनेस, एंड इफ़ यू सी
that India has improved to 118th position but still ranks behind Palestine and some of the conflict regions like Palestine, Ukraine, Pakistan, Nepal से पीछे है, because there are multiple reasons, whether there is the reason of trust or perception of corruption. हाँ, perception of corruption, trust and social support ये हमारे यहाँ थोड़ा कम है, freedom is less, that is why we rank behind. ठीक है. However, हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में वी हैव आनंद डिपार्टमेंट्स. इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश आनंद डिपार्टमेंट्स विद मेंबर्स फ्रॉम कल्चर, सोसाइटी, साइकोलॉजी. बहुत सारे एरियाज से मेंबर्स आते हैं और ये मेंबर्स क्या करते हैं, दे एंजॉय, दे क्रिएट हैप्पीनेस फेस्टिवल्स बाय फोक डांस, सिंगिंग, ड्रामा, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ करते हैं. उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश बिकेम द सेकेंड स्टेट टू एस्टैब्लिश दीज आनंद और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट्स. आनंद क्लब्स बनाए गए बहुत सारे रीजन्स में. उसके साथ साथ हैप्पीनेस क्लासेस वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट इन स्कूल्स. ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाए. ठीक है, डन यहाँ तक. सो यहाँ वी विल स्टॉप फॉर टुडे वी विल स्टॉप ओवर हेयर. एंड कल जो है हम नेक्स्ट इंडेक्स उठाएंगे, दैट विल बी द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स. और यहाँ कल ही हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, दैट इज द चैप्टर ऑफ डेवलपमेंट. सिंपल, डन. विद दिस वी कंक्लूड टुडेज डिस्कशन. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. जय हिंद.